اگر آج تم نے اس کہانی کو آخر تک نہ سنا تو شاید ایک سچ ہمیشہ تم سے چھپ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک خاموش انسان کی جسے دنیا نے نظر انداز کیا مگر قسمت نے نہیں۔ ایک لکڑہارا، ایک امیر لڑکی اور ایک ایسا راز جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی خاموش لوگ سب سے بڑی کہانی لکھ دیتے ہیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے جب ایک شہر تھا جہاں زندگی آہستہ چلتی تھی مگر فیصلے لوگوں کی پوری زندگی بدل دیا کرتے تھے۔ اسی شہر کے کنارے جہاں جنگل شروع ہوتا تھا اور آبادی ختم ہو جاتی تھی، وہاں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرنے والا، اپنی محنت پر جینے والا اور اپنی خاموشی میں بہت کچھ چھپا لینے والا۔ اس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ ہر صبح اس وقت اٹھتا جب آسمان پر روشنی پوری طرح پھیلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور سر جھکا کر بس اتنا کہتا، یا اللہ آج میری محنت کو رسوائی نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا، کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس کے گھر میں نہ دولت تھی نہ کوئی سہارا، بس ایک عادت تھی، خود پر بوجھ بننا مگر کسی اور پر نہیں۔ جنگل میں حمزہ گھنٹوں لکڑیاں کاٹتا، ہاتھ زخمی ہو جاتے، پسینہ آنکھوں میں چپتا، کبھی کبھار خون بھی نکل آتا، مگر اس کی زبان سے کبھی شکایت نہیں نکلتی۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کا سب سے بڑا عیب شور مچانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ خاموش رہتا تھا، اور اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی عزت تھی۔ لکڑیاں بیچ کر حمزہ روز شہر کے بازار سے گزرتا، کوئی قیمت کم کر دیتا، کوئی نظریں چرا لیتا، کوئی اسے دیکھ کر بھی انجان بن جاتا، مگر حمزہ کسی سے بحث نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ رزق کا فیصلہ بازار نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ اور اسی راستے پر روز ایک ایسا موڑ آتا جہاں سے اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے والی تھی۔ اسی شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا گھر تھا، اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور اوپر شہر کی طرف کھلتی ایک کھڑکی۔ اس کھڑکی کے پاس اکثر ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو لوگ دعاؤں میں مانگتے ہیں، عزت، آرام، محفوظ زندگی، مگر اس کے باوجود وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی۔ نیچے گزرتے لوگ، ان کی مصروفیت، ان کی تھکن سب کچھ دیکھتی اور اپنے اندر ایک سوال محسوس کرتی کہ اتنی بھیڑ میں بھی کوئی اتنا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی ماں یہ سب سمجھتی تھی، مگر باپ اور بھائی کے لیے عائشہ صرف ایک شہزادی تھی جس کی زندگی پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ایک دن حمزہ اپنی لکڑیاں بیچ کر اسی گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس کی نظر ہمیشہ کی طرح زمین پر تھی۔ اس نے عائشہ کو نہیں دیکھا اور شاید اسی وجہ سے عائشہ نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے بغیر بھی اس کی عزت کر سکتا ہے۔ نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی بات، بس ایک لمحہ جو دونوں کے دل میں خاموشی بن کر رہ گیا۔ عائشہ کا بڑا بھائی یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا، روز وہی لکڑہارا، روز وہی وقت، روز وہی راستہ۔ اس کے لیے یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ غریب ہونا اور خاموش رہنا یہ امتزاج اکثر خطرناک ہوتا ہے۔ اس رات حمزہ تھکا ہوا گھر لوٹا، ہاتھوں میں درد تھا مگر دل میں سکون۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف رکھی، زمین پر بیٹھ کر کہا، یا اللہ جو بھی میرے لیے لکھا ہے مجھے اس کے قابل بنا دے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اب صرف محنت نہیں، لوگ بھی شامل ہونے والے ہیں۔ اگلی صبح بھی حمزہ اسی وقت اٹھا، اسی راستے پر چلا اور اسی گھر کے سامنے سے گزرا۔ کھڑکی بھی وہی تھی، راستہ بھی وہی تھا، بس اس بار کسی نے اسے محسوس کیا تھا اور کسی نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر حمزہ کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، وضو، نماز، کلہاڑی کندھے پر، مگر اس بار اس کا دل کچھ زیادہ خاموش تھا۔ جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، مگر آج کلہاڑی کی رفتار سست تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا اور اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں بس، مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی شور مچا سکتی ہے۔ بازار میں آج بھی لوگوں نے قیمت کم کی، کسی نے پورا مول نہیں دیا، مگر آج اسے یہ سب پہلے جیسا نہیں لگا۔
उसे महसूस हुआ जैसे लोगों की बातों के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। और जब वो उसी रास्ते पर आया, उसी घर के सामने, तो उसने अपनी नज़र और ज़्यादा झुका ली। आयशा आज भी खिड़की के पास थी, मगर आज वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। हमजा गुजरा, नज़र झुकी हुई, कदम तेज, और आयशा का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा। उसके जहन में सवाल उठने लगे, ये क्यों नहीं देखता? जब सब देखते हैं तो ये क्यों नहीं? पहली बार आयशा खुद को सवालों के बीच खड़ा महसूस कर रही थी। आयशा की माँ ने बेटी को खिड़की से हटते देखा। उसकी आंखों में वो घबराहट थी जो बगैर कहे सब कुछ बता देती थी। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आज हवा तेज है, ठंड लग जाएगी। आयशा ने सर हिला दिया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। आयशा का बड़ा भाई ये सब देख रहा था। खिड़की पर खड़ी बहन, नीचे से गुजरता वही लकड़हारा, रोज का वही वक्त। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था। उसने अपने बाप से कहा, क्या आपने गौर किया? रोज एक ही आदमी, एक ही वक्त, एक ही रास्ता। बाप ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी हाँ जैसी लग रही थी। इसी शहर में जैद भी था। साफ सुथरे कपड़े, तेज जबान और लोगों को समझने की आदत। वो काफ़ी अरसे से आयशा को पसंद करता था और उसने ये भी महसूस कर लिया था कि घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जा रहा है। जैद ने भाई के साथ बैठना शुरू किया और बाप से बातें करना शुरू की। उसने कुछ भी खुलकर नहीं कहा, बस इतना बोला कि आजकल ज़माना ठीक नहीं, हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। ये बात बाप और भाई दोनों को मुनासिब लगी। उस रात हमजा घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? हमजा ने सर हिलाकर कहा, नहीं अम्मा, बस थकन ज़्यादा है। वो झूठ बोल गया, या शायद उसे सच बोलने का तरीका ही नहीं आता था। रात को वो देर तक जागता रहा। रात भर उसे नींद न आई और जब आंख बंद की तो बस एक ही दुआ लबों पर आई, या अल्लाह, मेरे दिल को मेरे काबू में रखना। आयशा भी उस रात देर तक जागती रही। उसके जहन में हमजा का चेहरा नहीं था, उसकी खामोशी थी। कभी ख्याल आता कि अगर वो बोल देता, अगर वो एक नज़र देख लेता, फिर वो खुद ही अपने ख्याल को रोक देती कि ये सब सोचना भी दुरुस्त नहीं। उसने दुआ की, या अल्लाह, जो मेरे लिए मुनासिब नहीं उसे मेरे दिल से निकाल दे। अगली सुबह हमजा फिर उठा, फिर जंगल गया, फिर शहर आया। आयशा फिर खिड़की के पास आई और नीचे उसी लम्हे जैद बड़े भाई के साथ खड़ा था। भाई की नज़र हमजा पर थी और जैद की नज़र पूरे मंजर पर। हमजा गुजरा बेखबर और कुछ लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। आयशा ने खिड़की बंद कर दी। भाई ने बात अधूरी छोड़ दी और जैद ने मुस्कुराना छोड़ दिया। हमजा अपनी कुल्हाड़ी संभाल कर घर की तरफ चल दिया। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खामोशी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। शाम आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर उतर चुकी थी। चिराग जल रहे थे, मगर कमरे की रोशनी आज कुछ कम महसूस हो रही थी। आयशा का बाप जमीन पर बैठा था, चेहरा सख्त और निगाह सीधी। उसके पास घर के कागजात भी थे और लोगों की बातें भी। बड़ा भाई उसके करीब खड़ा था। उसकी आवाज में गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था। उसने कहा कि अब ये रूस का सिलसिला ठीक नहीं, लोग बातें करने लगे हैं। बाप ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि कल से खिड़की बंद रहेगी। आयशा पर्दे के पीछे खड़ी थी। ये सुनकर वो वहीं जैसे जम गई। उसने कुछ नहीं कहा, ना इनकार ना सवाल, मगर उसने महसूस किया कि उसकी सांस पहली बार घर के अंदर भारी हो गई है। वो अपनी माँ के पास गई, सर झुकाकर बैठ गई और आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? माँ ने उसका चेहरा उठाया, देर तक देखा, फिर कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही, मगर तुम कुछ महसूस कर रही हो और यही बात लोगों को डराती है। इस रात माँ ने सिर्फ सजदा नहीं किया, बल्कि पहली बार अल्लाह से शिकायत भी की। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को इस दर्द की सज़ा ना देना जो उसने मांगा भी नहीं। आयशा माँ के पास ही लेट गई, मगर नींद दोनों को नहीं आई। इधर हमजा शाम को जंगल से लौटा, कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, पानी पिया और खामोश बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, आज बाजार में कुछ मुख्तलिफ लगा? हमजा ने सर हिलाकर कहा, सब वैसा ही था। वो सच कह रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि कुछ तब्दीलियां बाजार में नहीं, घरों के अंदर होती हैं।
इसी दौरान जैद ने मौका मुनासिब समझा। वो बाप के पास बैठा और आहिस्ता से कहा कि वो कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता, मगर आजकल हर बाप को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बाप ने सर हिला दिया और भाई को यूं लगा जैसे कोई उसकी दिल की बात उसकी जुबान से पहले कह रहा हो। अगली सुबह खिड़की बंद थी। आयशा पहली बार इस घर के अंदर खुद को कैद महसूस कर रही थी। वो नीचे नहीं देख पा रही थी, मगर उसे मालूम था कि हमजा इसी वक्त इसी रास्ते से गुजरेगा और यही ख्याल उसके लिए काफी था। हमजा जब उस दिन उस घर के सामने से गुजरा तो उसने पहली बार खिड़की बंद देखी। वो रुका नहीं, उसने ऊपर नहीं देखा, मगर उसके कदम अपनी रफ्तार खो बैठे। उसने खुद से कहा शायद बारिश आने वाली है और आगे बढ़ गया। शाम को भाई ने बाप से कहा कि हमें अब रिश्ता देखना चाहिए। बाप ने फौरन पूछा कोई नज़र में है? भाई ने कहा अयाज। अयाज शहर का जाना पहचाना नाम था, पढ़ा लिखा, सीधा साधा और अच्छे घराने से। बाप को नाम पसंद आया, भाई को भी, सिर्फ माँ खामोश रही। आयशा ने जब अयाज का नाम सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में पहली बार आंसू ठहर गए। उसने माँ से कहा मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मगर मेरा दिल कहीं और ठहर गया है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा मैं जानती हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। उस रात हमजा देर तक बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, बेवजह का। उसने खुद से कहा जो मेरा नहीं उससे दूर रहना ही बेहतर है, और उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस रास्ते से तेजी से गुजरेगा। अगली सुबह 3 अलग अलग फैसले हो चुके थे। हमजा ने अपने कदम तेज कर लिए, आयशा ने खिड़की खोलने की हिम्मत न की, और जैद बाप के साथ बैठा था। अयाज का नाम अब घर के अंदर रोज लिया जाने लगा। उस रात आयशा ने अपनी माँ से कहा अगर ये अल्लाह का फैसला है तो मुझे हिम्मत दे। और हमजा ने अपनी माँ से कहा अम्मा अगर कुछ दिन शहर से दूर काम मिल जाए तो बेहतर होगा। 2 लोगों ने अलग अलग फैसले कर लिए थे, मगर दोनों को मालूम नहीं था कि ये फैसले अभी मुकम्मल नहीं हुए। शाम फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर उतर रही थी। चिराग जल चुके थे, मगर कमरे की रोशनी फिर भी कम लग रही थी, जैसे रोशनी भी जानती हो कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। आयशा का बाप जमीन पर बैठा था। उसके सामने कागजात भी थे, रिश्तों के नाम भी और लोगों की बातें भी। वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी कह रही थी कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बाप हूं। बड़ा भाई पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, खौफ था। ये खौफ कि अगर कल शहर में बात फैल गई तो हम कैसे सर उठाएंगे। आयशा पर्दे के पीछे बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। वो बाहर आई। उसकी आवाज़ हल्की थी, मगर अल्फाज भारी। उसने कहा अब्बा मैं आपसे जिद नहीं कर रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो कल मैं मुस्कुराना सीख लूँगी, मगर वो मुस्कुराहट इस घर की खुशी नहीं होगी। ये कहकर वो रोई नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। माँ आगे बढ़ी। आज वो सिर्फ माँ नहीं, एक औरत बनकर बोली। उसने कहा मैंने अपनी बेटी को कभी जिद करते नहीं देखा। उसने जो महसूस किया उसे छुपाया, और अगर ये भी गुनाह है तो फिर हम बेटियों को सिर्फ बोझ ही पैदा करते हैं। बाप ने पहली बार नजर झुका ली। जैद खामोश खड़ा था। उसने सोचा था कि वो आखिर तक खुद को मजबूत दिखाता रहेगा, मगर जब बाप ने पूछा कि तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, तो वो रुक गया। सच छुपाया जा सकता है, मगर ज्यादा देर नहीं। उसने आहिस्ता से कहा कि क्योंकि मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। भाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा तो तुम मदद नहीं कर रहे थे, तुम अपना रास्ता बना रहे थे। जैद के पास अब कुछ कहने को नहीं था। अयाज को बुलाया गया। वो आया, बैठा, सबकी बात सुनी, फिर सर उठाकर कहा मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर आज मैं जीत भी गया तो कल मेरी बीवी हार चुकी होगी। उसने आयशा की तरफ देखा और पहली बार इज्जत से मुस्कुराया। उसने कहा तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी गवाही है। फिर वो बगैर शिकायत, बगैर गुस्से के उठकर चला गया। इधर हमजा शहर के किनारे अकेला खड़ा था। उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी थी और एक फैसला। उसने खुद से कहा मैं किसी के घर की इज्जत अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। वो जाने ही वाला था कि उसे बुलाया गया। हमजा घर आया, सर झुका हुआ, आंखें जमीन पर,
बाप ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? हमजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात ज़बान तक नहीं आने दी। अगर मेरी खामोशी भी गुनाह बन गई हो तो मैं चला जाऊँगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। भाई आगे आया और कहा, अगर तुम बुरे होते तो तुम बोलते, और अगर तुम गलत होते तो तुम यहाँ खड़े न होते। उसने बाप की तरफ देखा और कहा, हमें गुर्बत से नहीं बदनामी से डर था, मगर बदनामी गलत फैसलों से होती है। बाप ने आंखें बंद की, देर तक कुछ न कहा, फिर बोला, अगर मेरी बेटी का सुकून इस आदमी की खामोशी में है तो मैं उसे छीन कर कैसा बाप बन जाऊंगा। उसने हमजा की तरफ देखा और कहा, तुम लकड़हारा हो, मगर तुमने इज्जत का बोझ मुझसे बेहतर उठाया है। बाप ने हमजा को बैठने का इशारा किया। हमजा जमीन पर बैठ गया, सर झुका हुआ, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं। कमरे में मां भी मौजूद थी, बड़ा भाई भी, और पर्दे के पीछे आयशा। बाप ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो या नहीं। मैं ये पूछूंगा कि अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी इज्जत के साथ उठा सकोगे? हमजा ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाया और कहा, मेरे पास आज भी कुछ नहीं और शायद कल भी ज्यादा ना हो, मगर जो होगा वो हलाल होगा, और जो जिम्मेदारी होगी उससे कभी भागूंगा नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बड़ा भाई आगे आया। उसने हमजा को गौर से देखा और कहा, तुम्हें मालूम है लोग तुम पर शक क्यों करते थे? क्योंकि तुमने कभी अपनी सफाई नहीं दी। हमजा ने आहिस्ता से जवाब दिया, जो सच्चा होता है उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ने गहरी सांस ली और कहा, शायद इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। मां पर्दे के पास गई और कहा, बेटी अब बात तुम्हारी भी है। आयशा बाहर आई, नजर झुकी हुई, आंखों में खौफ नहीं सुकून था। बाप ने पूछा, क्या तुम उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? आयशा ने कोई लंबी बात नहीं की, उसने बस कहा, जिस आदमी ने कभी मुझे हासिल करने की कोशिश नहीं की, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूं। ये कहकर उसने दोबारा नजर झुका ली। बाप ने मां की तरफ देखा, फिर भाई की तरफ, फिर हमजा की तरफ। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को अमीर घर दे सकता हूं, मगर अगर उसे सुकून ना दे सका तो ये अमीरी बेमानी है। उसने हमजा से कहा, कल सुबह घर के बुजुर्गों को बुला लो। हमजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सर झुका लिया। अगली सुबह घर में कोई शोर नहीं था, सिर्फ वो लोग थे जो इज्जत के साथ आए थे। ना कोई ढोल, ना कोई नुमाइश, सिर्फ बात, जिम्मेदारी और दुआ। जब सब तय हो गया तो एक लफ्ज जुबान पर आया, निकाह। कुछ दिन बाद हमजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। इस बार उसके कंधे पर कुल्हाड़ी के साथ जिम्मेदारी भी थी। खिड़की खुली थी, मगर आयशा वहां नहीं थी। वो अब घर के अंदर थी, अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। हमजा ने नजर झुका ली और आगे बढ़ गया। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और अल्लाह पर यकीन से बनते हैं। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी नहीं लगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी महसूस हुई हो, तो समझ लीजिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी कहानियों में ना कोई हीरो होता है, ना कोई विलन, सिर्फ सब्र, इज्जत और अल्लाह पर यकीन होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और बावकार कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह हम सबको सब्र और दुरुस्त फैसलों की तौफीक दे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा सराइकी रंग चैनल जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी कीमती राय लाजमी बताएं। शुक्रिया।